A very good afternoon, ladies and gentlemen. On this beautiful Sunday evening, after a heavy lunch, we have some insightful and interactive session. You, ladies and gentlemen, can really sit back and enjoy this, I promise. So before that, I am Ridhamjit and I will be moderating this session today and will be interacting with the guest here on your behalf. The session today is organized by LPU Fine Arts Society, Department of Cultural Affairs under the aegis of Division of Student Welfare. So ladies and gentlemen, the guest we have here is someone who is a young chap and has done so much work. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Riyansh Rahul, a YouTuber and artist who has done 200 plus commission works across India, Australia, Canada, USA, Republic of Ireland, Switzerland, and also is a great teacher and mentor to all those art lovers. He runs his own YouTube channel and is conducting online drawing training, drawing mastery classes. So welcome, sir. Thank you so much, Rida, for such an awesome welcome. And uh, I'm really glad that today I'm getting this opportunity to share something. And yeah, I'm really Thank you excited so today. much, sir. It's really prestigious for us that you have joined us today. Apart from being a great artist, आपका एक YouTube चैनल भी है, आप काफ़ी सारी वीडियोस भी डालते हैं, तो you're a great communicator और interactor, I guess. Yeah, actually, I love to communicate because I think uh, in any art form, it is really important कि हम अपने audience के साथ सारी चीज़ें connect कर सकें और उसके लिए बहुत ज़्यादा important है communicate कर पाना. And that is why sometimes I share motivational thoughts also so that I can share my views, the perspective I had for art. So it is really exciting and really beautiful, I think. When you started your career, you were not into professional art. So apart from having a solid background into commerce and finance, आपने इसके अंदर step in कैसे किया? And how did you think art can be your career? रिगा एक्चुअली मैंने इतनी इतनी चीजें स्टार्टिंग में सोची नहीं थी कि आर्ट में बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि उस समय मेरे माइंड में इतनी सारी क्लैरिटी नहीं थी. ग्रेजुअली आई बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली वो पैशन था कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ को मुझे आगे लेके जाना है. और क्योंकि मैं पढ़ाई में आफ्टर 10th मैं बहुत अच्छा हो गया था पढ़ाई में. एंड तो मेरे लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि अब मैं इसमें भी अच्छा कर रहा हूँ, अब मैं आर्ट में भी जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हुआ वहाँ पे. तो बट एक एक मेरा फ्रेंड था, मैं आपको ये शेयर मैंने कभी ये शेयर नहीं किया बट आई रियली वांट टू शेयर इट. एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा यार तेरी आर्ट इतनी अच्छी है, तू उसमें क्यों नहीं जाता. तो दैट डे आई रियलाइज कि जो चीज़ मैं बचपन से लेके चल रहा था, जिससे मुझे फील हो रहा था कि ये मेरी एक यूनिक क्वालिटी है जिससे मैं भीड़ से अलग फील करता हूँ. तो दैट डे आई डिसाइडेड कि अब जो मैं करूँगा इससे रिलेटेड ही करूँगा मैं. ठीक है, तो उस समय उतनी क्लैरिटी नहीं थी बट धीरे धीरे फिर मैं और इस फील्ड में डेप्थ जाती गया, नॉलेज गेन करते गए. उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि चीज़ें इस तरीके से होती है. Exactly. So it's that shift you took from education, ना? कि Yeah. पढ़ाई में भी अच्छा होना, being a bright student and taking a passion is really great challenge क्योंकि मम्मी पापा मानते नहीं है, the people Yeah. around us do not True. accept. Yeah, true. Exactly. And एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज और शेयर करना चाहूँगा ताकि जो लोग आर्ट की फील्ड के लोग देख रहे हैं उनको समझ आए कि लोगों की नजर होती है कि हम आर्ट को सिर्फ आर्ट की नजरिए से देखते हैं कि ये सिर्फ पेंटिंग कर रहा है, ये सिर्फ ड्राइंग कर रहा है. बट मेरा ये भी एक मोटिव था कि लोगों को ये भी समझाया जाए कि सिर्फ जो आप देख रहे हो कि पेंटिंग और ड्राइंग ऊपर ऊपर बन रही है, उसके अंदर की जो एजुकेशन है वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है. मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप किसी आर्ट फॉर्म में जा रहे हो तो आप एजुकेशन से कट चुके हो. उसकी एजुकेशन अलग है. बट क्योंकि नैरो माइंडेड इंडिया में खासकर ऐसा समझा जाता है कि जो हमारी एकेडमिक जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वही सिर्फ पढ़ाई है. उसके अलावा हर फील्ड में बहुत पढ़ाई होती है. सो आई रियली वांट टू कम्युनिकेट टू पीपल कि इसमें अगर आप घुस दो तो इसमें भी आपको पढ़ना जरूरी है. इस फील्ड के बारे में पढ़ो लेकिन पढ़ते रहना, लर्निंग करते रहना किसी को. Fabulous, sir. Well said. Because लोग जो सोचते हैं, they think fine art is only in blood होता है, मतलब खून में होता है कि तुम्हारे रगों में होता है, you herited from somewhere and वैसे ही natural go with the flow होता है. लेकिन आर्ट के लिए भी you need education, डांस के लिए भी you need education. एक कला सीखने के लिए the primary thing is education, knowledge.
और इसमें एजुकेटेड रहना, इसका वैल्यू बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है। एग्जैक्टली। सो दैट वाज वेरी ब्रिलियंटली पुट अप। सर, आपका जो आर्ट है, व्हाट आर द आर्ट स्टाइल्स यू वेंट इनटू? बिकॉज मैंने आपके पेज में ऑयल पेंटिंग भी देखा है, एंड accompanied with that you also trying with your hands on watercolors and for charcoal especially. So tell us about that. एक्चुअली ये थोड़ा सा, देखो मैंने स्टार्ट वैसे किया था वाटर कलर से। जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, तो मैंने वाटर कलर से बेस सीखे, ड्राइंग काफी टाइम तक की। बट एक जो कहीं ना कहीं मेरे शुरू से था कि ऑयल पेंटिंग मुझे करनी है कभी ना कभी। मैंने कैनवस कभी देखा नहीं था अपने 11th स्टैंडर्ड तक, तो वो कैनवस वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता था। ठीक है। एंड ऑयल पेंटिंग में मास्टर्स को देखता था कि जो पहले के मास्टर्स रहे हैं, उन्होंने ऑयल पेंटिंग कर रखी है, और उनके वर्क को देख के मुझे फील होता था कि ऐसा कुछ बनाना है मुझे। और जितने भी मैंने वर्क देखे तब ऑयल्स में वो रखे थे। तो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि ऑयल पेंटिंग में घुसना है। तो वाटर कलर करने के बाद मैंने काफी टाइम तक एक्रेलिक भी किया। उसके बाद जब मैंने ऑयल में शिफ्ट किया, तो तब से मैं ऑयल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं ऑयल में ही बेसिकली काम करता हूँ। जितने भी आइडल मेरे हैं, जो मास्टर्स रहे हैं, वो भी ऑयल के आर्टिस्ट हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑयल में शिफ्ट किया। अब मैं जितने भी, फिर धीरे धीरे जो भी मेरे कंपनियों से टाई अप होने लगे, जो कमीशन आने लगे, तो वो फिर ऑयल में आने लगे, क्योंकि मैंने उसमें फिर काम करना चालू कर दिया था। तो मैं उससे रिलेटेड पोस्ट डालता था, उसकी क्वालिटी बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे फिर मैं उसी में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुका हूँ, ऑयल पेंटिंग में। I personally do oil also. जो प्यार होती है, मोहब्बत होती है ऑयल से, दैट इज समथिंग रियली रिमार्केबल। या उसकी स्मेल से, लेकिन स्पीकिंग अबाउट ऑल दिस, हेल्थ कंसर्न्स भी काफी ज्यादा है। स्मेल ऑफ लिंसीड यूज विद टर्पेंटाइन एंड द स्मेल ऑयल पेंट का जो एसेंस होता है, उससे हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं। एंड बिकॉज व्हेन ऑयल पेंटर स्टार्ट्स ऑन विद अ वर्क ऑन स्ट्रेच 6 to 10 hours, बहुत आराम से लग जाता है। So how do you think an artist should give importance to health? हेल्थ आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड खासकर आर्ट के करियर में तो हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा करियर है जहाँ पे हमें बहुत लंबे समय तक टिकना है इस फील्ड में। ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, और क्योंकि ये हमारा पैशन भी होता है, तो हम चाहते हैं इसको लंबे समय तक काम करें। तो हेल्थ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात ऑयल पेंटिंग से हेल्थ इश्यू आने की, तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, जैसे कि लेड लेड कलर्स होते हैं, जिसमें केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी जो उसका जो यूसेज है वो इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में कैमल के ब्रांड बहुत बेसिकली चलते हैं। तो उन कलर्स में ना केमिकल की क्वांटिटी बहुत हद तक कम रहती है, तो उससे हेल्थ पे डायरेक्ट कोई असर नहीं होता है। एंड कुछ लोगों को टर्पेंटाइन से प्रॉब्लम है, क्योंकि टर्पेंटाइन एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। बाकी ऑयल पेंटिंग में बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। टर्पेंटाइन का लेकिन अब अल्टरनेटिव आ चुका है, ऑर्डरलेस मिनरल स्पिरिट आते हैं जिसमें स्मेल नहीं होती। तो जिनको अगर टर्पेंटाइन से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो ऑयल पेंटिंग करना चाहते हैं, वो उस मिनरल स्पिरिट को लेके उससे अब काम कर सकते हैं। सो हेल्थ सेफ रहेगा। नो, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ से, अगर आप ऑयल पेंटिंग में जा रहे हो, कोई भी जो आप देख रहे हो। इसलिए मैंने जैसे आपका प्रोफाइल गेज किया, दे विद लार्ज पोर्ट्रेट्स, मतलब ऐसे मैं बोल सकती हूँ पोर्ट्रेट्स और कम्युनिकेशन वीडियोस, यूट्यूब ट्यूटोरियल, समथिंग लाइक दैट, उससे फ्लडेड है। लेकिन दैट स्पेशल पीस ऑफ एलिफेंट वाला पेंटिंग जो इंसिडेंट हुआ था केरला में, तो it was a poem recitation along with a painting. That was a beautiful expression with Ganapati ji sitting and having two elephants on the lap. So उसके बारे में आप बताइए, and how do you relate art to humanity? अ, इसके ऊपर तो मैं, मेरी बहुत सारी फिलोसॉफीज है। मैं आर्ट को ह्यूमैनिटी से काफी हद तक जोड़ के ही सोचता हूँ कि आर्ट जो है वो एक तरीके से पीस ऑफ माइंड देती है। जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन खोज रहे होते हैं। तो कभी भी जब हम, कोई भी आर्ट का लवर, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई आर्ट फील्ड में घुसे, तो उस नजरिए से घुसे कि उस उसे उस आर्ट में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब हम इस पीस ऑफ माइंड को देखते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं, एंड काम का प्रेशर बहुत ले लेते हैं। और इन सब चीजों में जो रेड रेस भी हम कहते हैं कि लोग लगे पड़े हैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए, करने के लिए, वहां पे आर्ट जो ऐसी चीज है, वो एक एस्केप देती है लोगों को अपनी रोजमर्रा के स्ट्रेस से। कि आप जो अपने अंदर से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसके कारण बहुत सारी चीजें हम मेंटल लेवल पे सॉल्व करते चले जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं
कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ जो चाहते तो हैं आर्ट करना, बट वो अपनी बातें सामने नहीं रख पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस के थ्रू मैं उनको एक एनर्जी दे सकूं छोटी सी, कि तुम्हारे अंदर जो है उसको डेफिनेटली करो, क्योंकि आसपास बोलने वाला कोई नहीं होता। ये चीज मैंने देखी है कि मोटिवेट करने वाले बहुत कम है। मतलब 100 में से 1 आदमी बोलता है कि नहीं तू ये कर, कि तू इस काबिल है। 99 आदमी आपको बस आपकी बुराइयां गिनाते हैं कि आपके में क्या प्रॉब्लम है। यू आर शाय, आप ज्यादा टॉकेटिव हो, आपके में ये प्रॉब्लम है, आपके में वो प्रॉब्लम है। समथिंग फ्रॉम द हार्ट, राइट? लोगों को कमियां गिनाते हैं, एंड इट, टू बी ऑनेस्ट, इट्स रियली ट्रू, बिकॉज व्हाट पीपल डू इज, लाइक मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी रिसेंटली। एक मैथ्स टीचर ने 9th टेबल लिखा और 9 into 2 उसने गलत लिखा। तो द स्टूडेंट पॉइंटेड आउट दैट 9 2 18 है सर, 17 नहीं है। तो द टीचर सेड आई रोट 10 करेक्ट थिंग्स, मतलब 9 से 10 तक 9 मैंने करेक्ट लिखा, 27 लिखा, and I wrote 10 correct things, but still what mind went to point on was that 9 2 is equal to 18 गलत था। तो ये एग्जैक्टली, ह्यूमन नेचर होता है जो भी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस, सच में। कंप्लीटली एग्री। So sir, moving on to our next question, where do you draw your inspiration from? जो प्रेरणा आपको मिलती है कहाँ से आती है? The colors, the textures you use in, maybe the themes also. एक्चुअली इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो एक एक मेरे अंदर एक इच्छा रहती है कि जो मैं फील चाहता हूँ अपने वर्क में, जैसे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पोर्ट्रेट बनाऊं तो वो एक फील दे कि सामने अगर कोई पर्सन बैठा है तो उसको वो फील हो कि ये पर्सन मेरे सामने बैठा है, वो पेंटिंग नहीं है, वो मेरे सामने है, कोई वीडियो नहीं है। एंड जैसे मैं अगर लैंडस्केप पेंट करता हूँ तो मैं वो डेप्थ चाहता हूँ कि उस कोई अगर उस लैंडस्केप के सामने बैठे तो वो फील करे कि उस वो इस एरिया में खुद है। तो ये चीज पाना एक डिफिकल्ट टास्क है एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट के लिए, कि वो फील भी कर पाए। अगर वो पोर्ट्रेट बना रहा है तो सामने वो पर्सन है, ऐसा फील। लैंडस्केप बना रहा है तो वो सीनरी उसके सामने है, ये फील। तो ये फील लाने की जो स्ट्रगल है कि मुझे ये फील चाहिए, तो वो मुझे इंस्पायर करते रहती है। जब भी मैं कोई पेंटिंग मेरी कोई गड़बड़ी होती है तो मेरी नेक्स्ट पेंटिंग में मैं उस कोशिश में रहता हूँ कि वो जो मैं चाहता हूँ वो आ जाए। और वो थोड़ी बहुत भी अगर आ जाती है, मतलब अगर 5% भी आ गई, तो मुझे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर कर देती है कि हाँ जो चीज मैं कोशिश कर रहा था वो आ रही है। अब मैं अगली पेंटिंग में और ज्यादा लाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है और कीप्स मी गोइंग। जो ऐसे आर्टिस्ट थोड़े हैं जो अपना पूरा पोर्ट्रेट पैलेट नाइफ से बनाते हैं, और थोड़े ऐसे हैं जो एंटायरली ब्रशेस यूज करते हैं। तो वेयर डज द डिफरेंस कम अप? देखिए, अ, हर आर्टिस्ट एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको एक तरीके का लुक चाहिए अपने वर्क में। और हर आर्टिस्ट जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, कभी किसी ने कुछ और मीडियम इस्तेमाल किया, कभी किसी ने और टूल इस्तेमाल किया, तो उसमें एक पर्टिकुलर इफेक्ट अच्छा लग जाता है। तो उस पॉइंट के बाद एक स्टाइल डेवलप होना शुरू होता है। जैसे शुरू में हमने पेंसिल से शुरुआत की, हर कोई पेंसिल से ही शुरुआत करता है, पेंसिल से बनाया। फिर धीरे धीरे कुछ क्रेयॉन्स का इस्तेमाल किया बचपन में। उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े हुए और टेक्निक्स जानी और स्ट्रेटजीज जानी और तरीके जाने आर्ट वर्क को बनाने के। और अब मान लीजिए एक पर्सन को रियलिस्टिक आर्टवर्क चाहिए, तो उसके लिए वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा हर किसी के लिए सेम होते हैं। कि मुझे शेड्स कैसे करनी है, मुझे वैल्यूज कैसे पाने हैं, वो सारे लोगों के लिए सेम है। वो सारी चीजों को सीखने के बाद एक स्टेज आता है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से करता है। जैसे कई सारे आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कोई बर्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई ईयरबड जो होता है वो इस्तेमाल कर रहा है, उससे कोई अलग टेक्सचर पा रहा है। कोई नाइफ, वो अलग अलग टाइप की नाइफ आती है, तो अलग अलग टाइप्स के नाइफ से अलग अलग टेक्सचर उनको मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेक्सचर उनको लगता है कि ये टेक्सचर मेरे वर्क में अच्छा लग रहा है, इसको मैं अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट के बाद उनको पता रहता है कि प्रिंसिपल्स क्या है। उस प्रिंसिपल्स को पता होने के बाद जब वो नए टूल का इस्तेमाल करता है तो टेक्निकली वो सारी चीजें सही करता है, बस जो ओवरऑल लुक है वो उसमें उसकी जो पर्सनल टेस्ट है वहां पे आता है। अब जैसे कि मैं ब्रश से करता हूँ तो मुझे वो फाइननेस पसंद है, मुझे वो स्मूथनेस पसंद आती है, मुझे वो जैसा टेक्सचर मैं चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअल में फील कर रहा हूँ वो मैं मुझे पसंद आती है। तो इसलिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। अ, अब कोई आर्टिस्ट होते हैं जिनको वो टेक्सचर अच्छा लग रहा होता है, वो पैलेट नाइफ से जो टेक्सचर मिल रहा है उनको वो अच्छा लग रहा होता है।
तो वो उसको प्रीफर करते हैं। तो ये टोटली पर्सनल चॉइस है, लेकिन शुरुआत में प्रिंसिपल सीखने के लिए सारे लोगों को एक तरीके से ही काम करना पड़ता है। प्रिंसिपल सीखने के बाद फिर आता है हम जब अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पहले उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हो। उसके बाद फिर आप नई चीजें जब ट्राई करते हो तो वो सारी चीजें सही बैठती है, क्योंकि आपका बेस सही रहता है। उस बेस के ऊपर जो जो चीज ऐड होती जाएंगी, लेयर ऐड होती जाएंगी, वो सही आएंगे। तो दैट इज ए रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कोशिश भी करता हूँ कई बार लोगों को समझाने की। प्रिंसिपल सेट सेट करो, प्रिंसिपल पे काम करो, अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करो, ड्राइंग के फंडामेंटल इम्प्रूव करो। उसके बाद जब आप पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करोगे, नए नए टूल्स का इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज़ें सही तरीके से इस्तेमाल करना आप जान रहे होगे, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है। सर थैंक यू सो मच, यू हैव एस्टैब्लिश्ड द बेस वेरी वेल। क्योंकि जब भी कोई सोचता है ही वर्क्स ऑन द टॉप कि महल के स्टार्ट ऊपर ऊंचे में काम करना है, एंड पीपल डू फॉरगेट अबाउट द बेस एंड टू रिन्यू योर बेसिक्स और अपने बेसिक्स पर ठीक ठाक काम करना इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल आर डियर स्टूडेंट्स। कोर्स है ऑनलाइन ड्राइंग ट्रेनिंग, ड्राइंग मास्टरी। तो व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट, वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम एंड कौन से लेवल तक ब्रीफ अप करता है? So ओके, tell us about this package. ड्राइंग मास्टरी में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। और बेसिकली ये पूरी ट्रेनिंग, ये 17 चैप्टर की जो पूरी ट्रेनिंग है, पूरी बेस के ऊपर है। मतलब आप मटेरियल कैसे, कौन से लेने चाहिए आपको और कौन से छोड़ने चाहिए। ज्यादा जरूरी ये नहीं कि आप कौन से मटेरियल ले रहे हो, ज्यादा जरूरी ये है कि आप कौन से मटेरियल नहीं ले रहे हो, क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। अगर 100 तरीके की पेंसिल को एक पर्सन ले लेता है और 10 पेंसिल को ट्राई करने के बाद उसके वर्क अच्छे नहीं बन रहे, उसको ये लगता है कि इस पेंसिल में भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, और वो उलझ के रह जाता है बाकी मटेरियल्स में। तो एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो रखना चाहता हूँ हमेशा, वो ये कि मटेरियल होते हैं लिमिटेड। आप शुरू करो बस इन कुछ मटेरियल से जो बहुत ही नॉर्मल लेवल के हैं, क्योंकि वो आपको सिखाएगा कि मटेरियल कोई भी हो, आपको कंट्रोल लाना आना चाहिए उस मटेरियल के ऊपर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियल से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग पे आते हैं, जहाँ पे ड्राइंग एक्सरसाइज मैंने कुछ रखे हैं जो एक पर्सन को डेली करनी है। कुछ लेवल्स हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पर्सन स्टार्ट करता है फर्स्ट लेवल से, कुछ 10 दिन 15 दिन, जब तक वो उस लेवल में परफेक्ट ना हो जाए, फिर वो सेकंड लेवल पे जाता है, फिर वो थर्ड लेवल पे जाता है। तो वो ड्राइंग की ट्रेनिंग फिर चलती है, ड्राइंग के कुछ एक्सरसाइज चलते हैं जिसमें वो अपने ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें सीखता है। उसके बाद फिर हम आते हैं आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे। आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है और बहुत सिंपल है। देखिए, जब हम एक आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें गलती क्या हो रही है ये हमें तभी पता चलेगी जब हम वो उस गलती को देख पाएंगे। मैक्सिमम लोग उस गलती को देख नहीं पाते हैं कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। वो कंफ्यूज रह जाते हैं कि यार गलत कहाँ कर रहा हूँ मैं, और वो अटक जाते हैं वहां पे। तो आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रैक्टिस तो करो, बट आप ये भी समझो कि आप देखते कैसे हो चीजों को, आप गलतियों को खोजते कैसे हो। तो जब जब आपकी आंखें ट्रेन होना चालू करती है, आप जैसे जैसे आप देखना चालू करते हो कि एंगल सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लाइंस की प्रोपोर्शन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जब ये नॉलेज आपको समझ आती है, जब इसकी प्रैक्टिस होती है, तब बहुत एक फास्ट इम्प्रूवमेंट आता है आर्टवर्क को बनाने में, क्योंकि आपको पता होता है कि गलत कहाँ कर रहा हूँ, गलत कहाँ कर रही हूँ मैं। तो आप जल्दी जल्दी गलतियों को सुधारते हो, फिर जल्दी इंप्रूव होता है। फिर आई ट्रेनिंग के बाद हम बाकी चीजों पे जाते हैं, जैसे लैंडस्केप के ऊपर जाते हैं, शेडिंग के ऊपर जाते हैं। और शेडिंग फिर मैं क्लासिकल लेसन मैंने रखे हैं कि क्लासिकली शेडिंग कैसे सिखाई जाती है। जो वर्ल्ड मास्टर्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास जो आर्टिस्ट होते हैं, वो किस तरीके से सीखना शुरू करते हैं शेडिंग्स को। फिर जो फंडामेंटल्स हैं, वॉल्यूम, लाइट, फॉर्म, ये सारी चीजें जो बहुत जरूरी है अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये सारी चीजें फिर आगे इंक्लूडेड हैं। उसके बाद फिर लैंडस्केप के ऊपर हमने एक चैप्टर रखा हुआ है कि पूरे लैंडस्केप के ऊपर आप कैसे लैंडस्केप को सीखते हो। स्टिल लाइफ के ऊपर एक चैप्टर है कि आप स्टिल लाइफ सेटअप कैसे करते हो, स्टिल लाइफ को उसमें लाइट एंड शेड को सेट सेट कैसे करते हो, लाइट एंड शेड को फिर रेंडर कैसे करते हो, अपनी शेडिंग कैसे लाते हो उसमें। ओके, एंड लाइव ड्राइंग, जब हम ड्रॉ लाइव करते हैं, किसी चीज को सामने रख के लाइव ड्राइंग करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन उसमें है। एंड फोटो का इस्तेमाल कैसे करते हैं जब हम डेमो, जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो फोटो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लाइव कैसे बनाया जाता है, ये दोनों चीजें कवर्ड है। उसके बाद ग्रिड्स की जब हम बात करते हैं, तो ग्रिड्स में भी लेवल्स होते हैं, और ये लेवल्स के बारे में 99% लोगों को नहीं पता है।
कि हर हर कोई ग्रिड को एक ही तरह से इस्तेमाल कर रहा है, बट उसमें भी लेवल्स होते हैं कि आप शुरू में ये ग्रिड करोगे, फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, उसके बाद आप ये ग्रिड करोगे, फिर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी जहाँ पे आप लाइव ग्रिड करोगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइव लाइव है एंड यू आर यूजिंग ग्रिड्स। तो ये कुछ लेवल्स भी हैं। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है कि आपने शुरुआत की ऐसी चीज से जो नॉर्मल है, जो आपको डेली करनी है, फिर धीरे धीरे आप एडवांस पे जाते हो, लाइव ड्राइंग, लाइव पोर्ट्रेट, फिर पोर्ट्रेट भी एक चैप्टर है जहाँ पे आप पोर्ट्रेट कैसे बनाते हो, साथ में आप फिर लाइव पोर्ट्रेट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे टेक्निक्स होती हैं, कैसे मेजरमेंट होते हैं, लाइव फिगर कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें जो एक आर्ट के इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं, प्लस उससे थोड़ी सी और ज्यादा चीजें, वो सारी चीजें इस पूरी ट्रेनिंग में कवर्ड है। तो अगर एक पर्सन जो आर्ट का इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ड्राइंग मास्टरी में चीजें सीखना शुरू करते हो तो ये सारी चीजें आप कवर करते हुए चलते हो। काफी सारे आर्ट के टीचर भी जुड़ रखे हैं, जो आर्ट प्रोफेशनली कर रहे हैं वो भी जुड़ रखे हैं, तो उनसे भी बहुत सुंदर रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत खूबसूरत वो रेस्पॉन्स देते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर जिसको आर्ट फील्ड में सीरियसली आगे जाना है, जो सीरियस है, उसको डेफिनेटली इसमें आना चाहिए। वाओ, तो द एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर इज रियली ग्रेट। जो भी आर्ट एंथुसियास्ट है, जो भी आर्ट सीखना चाहता है, बेस से कंप्लीट बेस से स्टार्ट करके एकदम एक पूरा पैकेज जैसे हम फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। एंड सो स्पीकिंग, दिस कोर्स इज ऑनलाइन राइट, ड्यू टू द Yeah, लॉकडाउन एंड लार्जर कनेक्टिविटी। ये जो कोर्स है ऑनलाइन है, हाउ वेल डू sure. यू थिंक इज द कनेक्टिविटी? क्योंकि आज के बारे में हम बात करें तो ऑन स्पॉट सिखाना is a very different thing and going online is a different thing. Okay. I think कि ऑनलाइन एजुकेशन इज फार बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन। ओके, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ऑनलाइन सीखते हो, देन आपको सबसे अच्छी चीज मिलती है क्वालिटी, क्योंकि एक पर्सन जो आपके घर के पास सिखा रहा है एंड एक पर्सन जो किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में सिखा रहा है, डेफिनेटली आप उससे सीखना चाहोगे, उससे ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहोगे, बट ऑफलाइन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक क्वालिटी देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत लोग आर्ट के इंस्टीट्यूट कॉलेज इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एंड सही गाइडेंस ना होने के कारण, सही चीजों का पता ना होने के कारण बहुत सारे लोग पैसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो जा नहीं पाते हैं। तो ऑनलाइन आपको क्वालिटी भी देता है, साथ में साथ साथ ही साथ आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड चीज, आप इसको रिपीटेड मोड में देख सकते हो किसी भी चीज को। जब आप ऑनलाइन सीखते हो, एक चीज आपने सीखी, आपने जब तक उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, हो सकता है आप भूल जाओ। ये तीसरी प्रॉब्लम है जो ऑफलाइन होती है। तो आप बार बार उसको देख सकते हो, ये ऑनलाइन में ये फायदा है। एक चौथा फायदा जो बहुत अच्छा है कि काफी सारे हाउसवाइफ्स हैं, काफी सारे लोग अदर प्रोफेशन में, काफी सारे लोग जॉब करते हैं, उनको भी आर्ट में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, वो सीखना चाहते हैं, पर उनके स्केड्यूल के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाते कहीं पे। तो ऑनलाइन जो चीज है वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट कर सकते हो कि यार मैं अभी सुबह मेरा जॉब है, मुझे रात को टाइम मिलता है, मैं इस वक्त काम कर सकता हूँ। काफी सारे हाउस वाइफ मैंने उनको भी बहुत सारे टिप्स दे रखे हैं हाउस वाइफ के लिए कि जब आप किचन में हो तब भी कोई कोई एक्सरसाइज रहते हैं, जब आप उस समय उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम कर पाते हो, आप चीजों को बार बार देख पाते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड क्वालिटी वर्क मिलता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग लाइक एनीथिंग। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी, एंड खासकर आर्ट की फील्ड में, जो अभी तक जिन्होंने ये सोच के रखा था कि यार सीखना चाहता हूँ पर कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं तो गाँव में रहता हूँ, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, मैं तो इस जगह में रहता हूँ, यहाँ तो किसी को पता नहीं है। सो ऑनलाइन वी कैन कनेक्ट कि आपके गाँव में अगर किसी को नहीं पता है, नो वरी, वी आर हियर कि हम एजुकेशन आपको बांट रहे हैं यहाँ से, आप अपने गाँव में फैलाओ। ओके, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसके थ्रू आर्ट की नॉलेज आपके लोगों को पता चलेगी। तो ये बहुत एक बड़ी कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे मिली, तो इट इज रियली ऑसम पॉइंट। You find it as a great platform for connectivity, right? जैसे इंस्टाग्राम हो गया आर्टिस्ट के प्रोफाइल जो आर्टिस्ट के वर्क्स कंटिन्यूसली शेयर करने, यूट्यूब हो गया नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म,
and lot more coming up for sharing this great knowledge. And ये जो platform है जैसे आपने बताया, it becomes for everyone every time. So that's the एग्जैक्टली। important thing about going online. तो सर जो आपके portraits हैं shifting out there, so tell us about the charcoal pencils you use, the materials you use, and the ओके techniques you implement. ओके, बेसिकली आई एम इनटू ऑयल पेंटिंग एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय ऑयल पेंटिंग टेक्निक लिटिल बिट। ऑयल पेंटिंग में दो तरीके से काम हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, जहाँ पे हम आला प्राइमर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम कलर को लेते हैं एंड डायरेक्टली हम वो वैल्यूज एंड वो कलर जो हम चाहिए वो डायरेक्टली हम मैच करते हैं। बट मेरा जो अप्रोच है वो इनडायरेक्ट अप्रोच है, मैं लेयर वाइज काम करता हूँ। ड्राइंग, then I used to put first layer, in first layer सारे कलर्स फ्लैट होते हैं, दो तीन शेड में पूरे पोर्ट्रेट को या जो भी मैं बना रहा हूँ उसको दो तीन कलर्स में रखना है, लोकल वैल्यूज में रखना है। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए देन आई ऐड माय अनदर लेयर, जहाँ पे वॉल्यूम में ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं और थोड़े से डिटेल्स ऐड करता हूँ। फिर जब वो लेयर ड्राई हो जाए देन आई ऐड अनदर लेयर। सो आई यूज टू वर्क इनडायरेक्टली। इस अप्रोच को इनडायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे हम लेयर वाइज काम करते हैं। एंड ये मेरी टेक्निक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ एंड आई फील कि इसमें बहुत ज़्यादा मैं पोटेंशियल काफ़ी मुझे ज़्यादा लगता है कि इस तरीके से मैं और रियलिज्म पा सकता हूँ। एंड अगर मटेरियल्स की बात करें तो शुरुआत मैंने कैमल के पेंट से की थी, जब मैंने ऑयल पेंटिंग सीखनी जब चालू की थी, क्योंकि कैमल के पेंट्स एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको बहुत सारे कैनवस और कलर बर्बाद करने हैं अभी। तो सस्ते चीज़ों से शुरू कर सकते हो आप, कैमल से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है वो। अब आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग विंटर एंड न्यूटन। विंटर न्यूटन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, वर्ल्ड नोन एक ब्रांड है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। अब मैं विंसर न्यूटन के कलर इस्तेमाल करता हूँ। एंड ब्रश की अगर बात करें तो ब्रश बहुत बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, क्योंकि लोग ब्रश की ब्रांड का नेम खोजते हैं कि ब्रश में नाम कैसे, जैसे कलर्स के नाम होते हैं वैसे ब्रश के नाम खोजते हैं लोग। लेकिन मैं कभी भी ब्रश को उसके नाम को पढ़ के नहीं लेता हूँ। मैं जब भी किसी आर्ट स्टोर जाता हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू टच द क्वालिटी ऑफ हेयर, कि अगर उसकी हेयर की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, भले वो एक्सपेंसिव है या सस्ता है, डजेंट मैटर, उसकी दिखने में खूबसूरत है कि नहीं या फिर बद से बदतर दिख रहा हो, मुझे वो मैटर नहीं करता। मैं उसके बस बाल को टच करके देखता हूँ, अगर उसके बाल अच्छे हैं, मुझे फील हो रहा है कि इसको अगर मैं अपनी कैनवस पे चलाऊं तो वो टेक्सचर आ सकता है, देन आई यूज्ड टू बाय दोस काइंड ऑफ ब्रशेस। तो ब्रशेस का तो ऐसा है मेरे साथ। एंड उसके अलावा चारकोल की बात करें तो आई रियली लाइक चारकोल, क्योंकि वो काफ़ी रेंज देता है। डार्कनेस जो होती है, डार्कनेस बहुत अच्छा देता है वो। जो उसकी क्वालिटी है चारकोल की, बेसिकली क्वालिटी ये है कि वो आपको एक वाइड रेंज देता है। आप वाइटनेस तो हमें मिल जाती है लेकिन डार्कनेस हमें कोई मीडियम नहीं देता। ग्राफाइट हमें डार्कनेस नहीं देती, तो चारकोल हमें डार्कनेस देता है, प्लस हमें क्विक स्टडी का ऑप्शन देता है। हम चारकोल के साथ जल्दी स्टडी कर सकते हैं, वो जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं। तो चारकोल की दो बेनिफिट है जो बहुत उसको अच्छा बनाती है स्टडीज के लिए। और अगर आपको फाइन वर्क करना है, बहुत डिटेल्ड वर्क करना है चारकोल में, तो उसके लिए बहुत एक अच्छी चीज ये है कि आपको चारकोल को शार्प करना आना चाहिए। अगर आप चारकोल को अच्छे से पॉइंटेड पॉइंटेड करके शार्प करते हो चारकोल को, तब आप चारकोल में वो कंट्रोल पा सकते हो, तब वो चारकोल को आप उस लेवल में इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको फाइननेस चाहिए, बहुत हाइपर रियलिज्म चाहिए। तो ये चारकोल के साथ As we were speaking about the materials, sir, तो canvas के बारे में भी हमें बताइए. So there are कैनवा various canvas you use on, right? Be it cotton या linen सबसे अच्छा माना जाता है. तो tell us about the GSM, the canvas, and things like that. कैनवस शुरुआत में तो मैंने कॉटन कैनवस इस्तेमाल किया था, और कैमल कैमल के जो बोर्ड्स आते हैं, कैनवस के जो बोर्ड्स आते हैं, मैंने उस पर बहुत काम किया। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं रोल पे शिफ्ट किया, जो अलग अलग ब्रांड्स के रोल्स आते हैं, ब्लूस्ट्रो के हो गए या फिर और किसी कंपनी के जो कॉटन रोल्स आते हैं उसको मैंने इस्तेमाल किया काफ़ी टाइम तक। बट फिर अभी कुछ सालों से मैं लिनन पे ही काम कर रहा हूँ। मैंने पिकासो का एक ब्रांड मैंने देखा था जो बहुत अच्छा मुझे लगा, उसके बाद से मैं पिकासो एक ब्रांड है कैनवस का, लिनन कैनवस का, तो वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एंड आई थिंक पिकासो एंड अभी रॉय कंपनी जो है वो मर्ज हो रखी है, तो आई थिंक रॉय की कैनवस अभी अच्छे आने लग गए हैं। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई रॉय की कैनवस इन फ्यूचर।
और भी तरीके के मैं कैनवस ट्राई करने वाला हूँ, बट फिलहाल मैं पिकासो ब्रांड का जो कैनवस है, लिनन, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और रोल इस्तेमाल करता हूँ। तो आई कैन कट इन डिफरेंट साइजेस, तो मैं उसको अलग अलग साइज में काट के जिस साइज का मुझे चाहिए उसको मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रोल ज़्यादा पसंद है। और उनको रखना भी थोड़ा सुविधा होता है, उनको अच्छे से रखा जा सकता है, तो आई रियली लाइक रोल्स। वन मोर क्वेश्चन सर, अब जो रोल्स की बात होती है तो जनरली आफ्टर द पेंटिंग ऑयल में जैसे डेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज सम पीपल डू अप्लाई गेसो एंड डेंसिटी डज इंक्रीज, उसके बाद व्हाट अनप्रोफेशनल और समटाइम्स एक्सीडेंटली पीपल कर बैठते हैं कि वो रोल कर देते हैं, तो हाउ डू यू स्ट्रेटन इट बैक बिकॉज दे फोल्ड इट और जो क्रैक्स आ जाते हैं आपके ऑयल वर्क में, जो भी जहाँ पे डेंस एरिया है वहाँ पे क्रैक्स निकल जाते हैं। एंड ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द लॉन्जिटिविटी ऑफ द पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग के थोड़े ब्रांड्स में ऐसे होता है कि येलोनेस आ जाती है आफ्टर मेनी ईयर्स, तो हाउ डू वी एक्चुअली अवॉइड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्रैक्स की बात करें तो कैनवस को रोल करने के बाद जो लाइंस आती है वो ठीक हो जाती है जब उनको अच्छे से स्ट्रेच किया जाता है दोबारा फ्रेमिंग के टाइम पे। एंड आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप कैनवस को रोल करो उससे पहले आप मेक श्योर कर लो कि वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है। वो टच करने पे भी अगर वो थोड़ी सी स्टिकी लग रही है तो आप उसको पहले अच्छे से ड्राई होने दीजिए। एंड ड्राई जल्दी कैसे करना है उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। जल्दी ड्राई करने के लिए बेसिकली आपको लिंसिड ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लिंसिड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको ड्राई होने में। तो बेसिक रूल यही है कि शुरू में जब आप पहले लेयर दो तो कम से कम आपको मीडियम रखना है। आप टर्पेंटाइन प्लस लिंसिड को मिला के इस्तेमाल कर सकते हो बहुत कम मात्रा में। फिर धीरे धीरे जैसे लेयर बढ़ेंगे तो आप टर्पेंटाइन की जो क्वांटिटी उसको कम करेंगे और लिंसिड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब ठीक है? उससे लिंसिड भी कम रहेगा। एंड जैसे जैसे लेयर बढ़ेंगे लिंसिड की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, टर्पेंटाइन की कम रहेगी। इससे क्रैक नहीं आते हैं लंबे समय के बाद। और जब सूख जाए पेंटिंग अच्छे से तब आप उसको रोल करके जब रखते हो, जब आप उसको दोबारा आपको फ्रेमिंग करवानी है या फिर आपको कोई एग्जीबिशन में ले जाना है तो उसको स्ट्रेच करते समय फिर वो लाइनिंग्स नहीं आती हैं। एंड सेकेंड थिंग, येलो होने की जो बात है उसका यह है कि अगर आप लिंसिड को कम, उसमें भी सेम चीज है, अगर आप लिंसिड को कम मात्रा में इस्तेमाल करते हो तो वो येलोनेस नहीं आती है। क्योंकि काफी लोग लिंसिड ऑयल को ग्लेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। ग्लेज मतलब जब हम लिंसिड को बहुत मात्रा में ले लिए, कलर को बहुत कम मात्रा में लिए, ठीक है, उससे क्या होता है लिंसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो एक टाइम के बाद येलोनेस जो नेचर है वो आ सकता है। बट नॉर्मली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो लिंसिड, थोड़ा सा लिंसिड इस्तेमाल किया, नॉर्मली आप पेंटिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लिंसिड का इस्तेमाल करने में। इसके अलावा लिक्विन भी एक मीडियम आता है। लिक्विड अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप लिक्विन का इस्तेमाल कर रहे हो, लिक्विन एक मीडियम है जिससे पेंटिंग जल्दी ड्राई होती है। तो उस लिक्विन में भी अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हो और पेंट कर रहे हो तो वो भी येलो नहीं होता है बहुत एक लंबे समय तक। और आई थिंक कभी भी येलो होने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है फिर उसमें। So thank you so much, sir, for your valuable time, and we wish our students join you and get a lot of insights and learn a lot of things from you, because ये जो session रहा है, it's not only portrait, not only oil, not only watercolor, but a basic art की basics में कितना ध्यान देना है उसके बारे में काफ़ी सारे valuable things मिले हमें सीखने के लिए. So thank you, ladies and gentlemen. Thank you थैंक यू everyone who सो has मच। joined us, and thank you so much for your last few words before you leave the meeting. सॉरी विदा, कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड? सर ऐसे कोई मैसेज होगा जो आप हमारे ओके। बच्चों से कन्वे करना चाहते हैं? So the last message you would like to deliver. ओके, जितने भी आर्ट के लवर्स हो, जितने भी आर्ट के लवर हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर आप फाइन आर्ट में पैशनेट हो तो डेफिनेटली यू शुड गो इनटू इट। एंड वो कई लोग स्कोप की वजह से रुक जाते हैं कि स्कोप है या नहीं है, वो जो डाउट है उसके कारण काफी लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। बट आई रियली वांट टू शेयर ऑल दोस थिंग्स। आपको डेफिनेटली स्कोप मिल जाएगा अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए
you need to focus on fundamentals. तो ये एक जर्नी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है. You need to work upon your fundamentals, देन आपकी क्वालिटी के आपको क्वालिटी के ऊपर आपको काम करना है कि आपकी आर्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर आप काम करो, कितने अच्छे से आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो. देन यू कैन कम्युनिकेट. जब आपके पास वो सारी चीजें हो जाएंगी, आपके पास बेस होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तब आपके पास कम्युनिकेशन देने के लिए, आपके लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक बैकअप होगा, आपके पास एक स्टोरेज होगा जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज है. देन आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप बना लेते हो आर्ट में. सो आई वुड रियली लव कि जब लोग इस फील्ड में अच्छे से आते हैं, वहाँ फोकस के साथ काम करते हैं. तो यही मेरा एक मैसेज है कि वर्क अपॉन योर फंडामेंटल, वर्क अपॉन योर बेसिक. मेक श्योर कि आप जो भी चीज में जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज गेन करते जाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो. ठीक है, अपनी जो फील्ड है उसके बारे में ही आपको एक्सपर्टीज लानी है, इसमें आप फोकस करो. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू किल इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you, sir. We wish your message थैंक यू reaches सो मच all our million students. And thank you, ladies and gentlemen, for joining टू us. एवरीवन. And लॉट्स ऑफ लव also, टू I एवरीवन. would like to thank the guests on behalf of our entire university. Thank you, Riyan, sir. Thank you. That has थैंक यू been सो very मच रिदा insightful. फॉर इनविटेशन. So, ladies and gentlemen, this is Riza signing off for today. Thank you. Okay, love you all. Take care.